In today's class, we'll discuss about beats. What is this phenomena? So, for this, let us consider there are two sound waves and having nearly same amplitude, slightly difference in their frequencies, traveling in same direction. When get superimposed, then at a point with respect to time, sound becomes maximum, then maximum, minimum, and so on. So this phenomena is called as beats. Let us consider these two sound waves are represented mathematically by y1 and y2. Suppose one sound wave is y1, which is equal having amplitude a1 sine omega की जगह I am writing 2 pi n1 into t. n1 is frequency of the first sound wave. y2 is equals to a2 having amplitude a2 sine 2 pi n2 into t. n1 is the frequency of first sound wave, n2 is frequency of another sound wave. So the difference in the frequencies of both the waves should be very less. It should be equal to or less than 10. So I am saying suppose this difference is equals to alpha. Why is this so? That we will discuss later on. But first of all, remember this, that this difference should be very less. Only then this phenomena can be observed. If in place of n1, I can write n2 plus alpha. Into t. So what I will get? This equation I will get. Now resultant will be, or superposition of both the waves will be y1 plus y2. This is the resultant. So I can write y is equals to a1 sine 2 pi n2 into t plus 2 pi alpha into t plus a2 sine 2 pi n2 into t. I am getting this equation. This equation is in this form sine a plus b. And we know the formulas of sine a plus b. Sine a plus b is equals to sine a cos b plus cos a sine b. We will use this formula and then try to solve this derivation. I can write y is equals to a1 sine 2 pi n2 into t sine a cos b cos 2 pi alpha into t sine a cos b, then plus cos a and then sine b. Sine a cos b plus cos a sine b. I have written this in this format. I have opened the this equation can be written like in this way, and then this term will remain as it is plus a2 sine 2 pi n2 into t. I am erasing this. This is my resultant equation. Equation of this result. In this equation, you can see these two terms, sine 2 pi n2 into t, sine 2 pi n2 into t. This is common, so I will take y is equals to sine 2 pi n2 into t common, then a1 cos 2 pi alpha into t plus a2 plus a1 cos 2 pi n2 into t sine 2 pi alpha into t. Now, in order to solve this, we have to take some assumptions. Suppose let a1 cos 2 pi alpha into t plus a2 is equals to a into cos phi, and this a1 sine 2 pi alpha t is equal to a into sine phi. I will name them
this equation is equation number 1, this is equation number 2. Suppose substitute the value of equation number 1 and equation number 2 in the above equation. What I will get? Y is equals to a sine 2 pi and 2 into t into cos phi plus this value a sine 2 pi alpha into t. A1 sine 2 pi alpha t is a sine phi. So I can write a into cos 2 pi and 2 into t into sine phi. So I can write this equation. Y is equals to a and then sin a cos b, cos a sin b. So I can write sine 2 pi and 2 into t plus phi. This is the resultant which we are getting after superposition of the two waves y1 and y2, and a is the resultant amplitude. When this amplitude A is maximum, then साउंड जो हमें सुनाई देगा, जब A की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, जब A की वैल्यू मिनिमम होगी तो या तो साउंड मिनिमम हो जाएगा, यानी हमें साउंड सुनाई ही नहीं देगा. तो हम A के ऊपर बात करेंगे जो कि एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है साउंड की वो डिपेंड करता है इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर. तो हम इन दोनों इक्वेशंस की मदद से from equation 1 and 2 we'll try to find out this value of amplitude. Or we can write on squaring and adding equation 1 and 2, what we will get? A1 cos 2 pi alpha into t plus A2 whole square plus A1 sin 2 pi alpha into t whole square is equal to a square cos square phi plus a square sin square phi. Now I am erasing this equation. We know that when a square is taken common, then cos square phi plus sin square phi becomes 1. So on the right hand side we will get only a square. In case of left hand side we have to solve it. A plus b का whole square का formula हम लगाएंगे. So what we will get? I will get a1 square cos square 2 pi alpha t plus a2 square plus 2a1 a2 cos 2 pi alpha into t plus a1 square sin square 2 pi alpha into t is equal to a square. Now in this equation यहाँ a1 square और a1 square कॉमन है. यहाँ से हम cos स्क्वायर 2 बाई अल्फा टी प्लस साइन स्क्वायर 2 बाई अल्फा टी को अगर ब्रैकेट में ले लेंगे तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या आएगा 1. तो इसीलिए मैं इस स्टेप को स्किप करके और डायरेक्ट इक्वेशन लिख देती हूँ. a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 2 pi alpha t is equal to a square. यहाँ से मेरे पास एम्पलीट्यूड a की वैल्यू आएगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 2 pi अल्फा इंटू टी का अंडर रूट. यहाँ से ये मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू आई एम्पलीट्यूड की.
अब हम इसमें दो केस स्टडी करेंगे कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो हमें साउंड मैक्सिमम सुनाई देगी, और एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब हमें साउंड जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो साउंड भी मिनिमम होगा, और ऐसा कब होगा। सो वी विल कंसीडर टू केसेस हियर। केस फर्स्ट, व्हेन टाइम इज सपोज 1/2 अल्फा, 3/2 अल्फा, 5/2 अल्फा एंड सो ऑन। आप खुद देखिए, अगर टाइम की वैल्यू मैंने 1/2 अल्फा रखा तो ये 2 अल्फा और 2 अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमें बचेगा cos पाई। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 का अंडर रूट, यानी कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी a1 माइनस a2। और अगर इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम साउंड सुनाई देगा, एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। नेक्स्ट इज केस सेकंड, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 2/2 अल्फा, 4/2 अल्फा, 6/2 अल्फा एंड सो ऑन। इस केस में अगर आप ये वैल्यूज t की जगह पुट करेंगे, सपोज करो 1/अल्फा अगर आपने t की जगह पुट करा तो cos 2 पाई क्या होता है, 1 + 1। तो ये वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो हम यहाँ पे +1 जो है मिलेगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, वो आएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि a1 प्लस a2। तो अगर मैं कहूँ शॉर्ट में कि जब टाइम 1/2 अल्फा है, 3/2 अल्फा है, 5/2 अल्फा है, इस तरीके से अगर टाइम है तो हमारे पास मिनिमम साउंड सुनाई देगा। और जब टाइम 2/2 अल्फा, 4/2 अल्फा, 6/2 अल्फा है तो हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ पर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकल कर आएगा a1 माइनस a2, यहाँ हमें मिनिमम साउंड प्रोड्यूस होगा। और केस सेकेंड, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 2/2 अल्फा, 4/2 अल्फा, 6/2 अल्फा एंड सो ऑन, यहाँ पर हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो आएगा a1 प्लस a2। नाउ इसी चीज को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि दो साउंड वेव्स हैं। फर्स्ट साउंड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी n1 जो है 4 है, और सेकेंड साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज करो 2 है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका मतलब 1 सेकेंड में ये 4 बार वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि 4 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। यानी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसे 1/4 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। अगर n2 जो सेकेंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, इसका मतलब 1 सेकेंड में 2 साइकिल्स प्रोड्यूस करेगा, और एक साइकिल कंप्लीट होने में 1/2 सेकेंड्स का समय लगेगा। तो इसी चीज को मैं समझाने के लिए मानती हूँ, एक टाइम 1 सेकेंड को लेकर चलती हूँ और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। 1/4 सेकेंड, देन 2/4 सेकेंड यानी 1/2 सेकेंड, देन 3/4 सेकेंड, 4/4 यानी कि 1 सेकेंड। ये टाइम है। तो जिसकी वेव की फ्रीक्वेंसी n1 है उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा 1/4 सेकेंड में। तो हाफ सेकेंड में इसके 2 हो जाएंगे, 3/4 सेकेंड में इसके 3 साइकिल हो जाएंगे, और 1 सेकेंड में इसके 4 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है उसके लिए उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा हाफ सेकेंड पर।
और 1 सेकेंड पर उसके 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर इसकी जो साइकिल होगी वो हाफ साइकिल ही कंप्लीट हो पाएगी, और इस समय पर उसकी 1.5 या फिर 3/2 साइकिल ही कंप्लीट हो पाएगी। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आप बताइए, जिस 1/4 सेकेंड्स ये कौन सा टाइम है? n1 4 है एंड और n2 हमारा 2 है। n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू अल्फा। यहां पर अल्फा क्या है? 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो दिस इज इक्वल टू टाइम 1/2 अल्फा। अल्फा 2 है तो 1/4 सेकेंड हो गया। यहां पर टाइम 2/2 अल्फा, आप अल्फा की वैल्यू पुट करिए तो ये 2 कैंसिल हो गया, अल्फा इज 2 तो ये 1/2 सेकेंड हो गया। यहां पर टाइम है 3/2 अल्फा, आप अल्फा की वैल्यू पुट करिए तो 3/4 सेकेंड हो गया। और यहाँ पर जो टाइम है वो है 4/2 अल्फा, यानी कि 1 सेकेंड। अल्फा की वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो हमारे पास 4/2 अल्फा। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब टाइम 1/2 अल्फा होता है तो हमें क्या मिलता है? मिनिमम साउंड। जब टाइम 1/2 सेकेंड्स होता है तो हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देती है। जब टाइम 3/2 अल्फा होता है तो हमें मिनिमम साउंड सुनाई देती है, या मतलब सुनाई नहीं देती है, साउंड मिनिमम हो जाती है। तो और ये है हमारा 1 सेकेंड। यहाँ पर टाइम है 4/2 अल्फा, यहाँ पर हमें साउंड मैक्सिमम साउंड सुनाई देती है। तो 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर आपको 2 बार मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा और 2 बार साउंड बीच में मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि कितने मैक्सिमम साउंड सुनाई दिए उसको 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ बीट्स। ओके, 2 बीट्स उसको सुनाई दिए तो हम कह सकते हैं कि जो 1 सेकेंड में उसको कितने बीट्स सुनाई दिए, दैट इज इक्वल टू n1 माइनस n2, क्योंकि यहाँ पर n1 था 4 और n2 था 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? 2। तो हमें 1 सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम साउंड सुनाई दिए? 2। तो बीट की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2, दैट इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2। हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले में ही लिखना है। बीट फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2, क्योंकि 1 सेकेंड में हमें कितने बीट्स सुनाई दे रहे हैं? 2, क्योंकि 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, तो 2 बीट्स इन 1 सेकेंड, तो दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली भी देखें तो हम ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर ये पूरा 1 सेकेंड मानो तो फर्स्ट वेव का जो है 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल और ये 4 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। ये पूरा 1 सेकेंड है, ये 1/4 सेकेंड, 1/2 सेकेंड्स, ये है अपना 3/4 सेकेंड और ये है अपना पूरा 1 सेकेंड। अगर दूसरी वेव लेकर चलूं जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो जब आप 1/4 सेकेंड पर, ये 1/4 सेकेंड है, ये 1/2 सेकेंड है, ये 3/4 सेकेंड्स है और ये 1 सेकेंड है। 1/4 सेकेंड पर उसकी कितनी वेव स्टार्ट होगी? हाफ वेव कंप्लीट होगी, यानी कि ऐसे। यहां पर आप देखेंगे तो 1/4 सेकेंड पर एक मैक्सिमम साउंड है, एक का क्रेस्ट आ रहा है, एक का ट्रफ आ रहा है। तो 1/4 सेकेंड पर साउंड क्या आएगा? मिनिमम।
1/2 सेकेंड्स पर दोनों के ही जो है ट्रफ आ रहे हैं और सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर साउंड हो गया है मैक्सिमम। फिर यहाँ 3/4 सेकेंड पर एक का ट्रफ है, एक का क्रेस्ट है, गैप है बीच में, तो यहाँ पर साउंड है मिनिमम। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर साउंड है मैक्सिमम। तो 1/4 सेकेंड पर मिनिमम साउंड, 1/2 सेकेंड पर मैक्सिमम साउंड, और 3/4 सेकेंड्स पर मिनिमम और 1 सेकेंड पर मैक्सिमम। इस तरीके से 1 सेकेंड में 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम साउंड आपको सुनाई देगा, 2 बीट्स आपको सुनाई देंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें N1 - N2 हमने 10 क्यों लिया? या तो 10 हो या 10 से कम हो, क्योंकि हमारा जो ईयर्स है, हमारे ईयर्स पर किसी भी साउंड का इफेक्ट 1 जो 10th सेकेंड तक रहता है। मतलब हम 1 सेकेंड में 10 क्लियर वॉइस ही सुन सकते हैं। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी 10 से ज़्यादा ले लेंगे, डिफरेंस दोनों ही वेव की फ्रीक्वेंसीज में 10 से ज़्यादा का डिफरेंस होगा, तो बहुत सारी बीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि बीट्स कब आई कब चली गई। तो ये फिनोमिना हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए जो हम, ताकि हम क्लियरली सुन पाएं, क्योंकि एक साउंड का इफेक्ट 1/10 सेकेंड तक रहता है, इस वजह से N1 - N2 की वैल्यू या तो 10 होनी चाहिए या 10 से कम होनी चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।